Assalamu alaikum dear students. In this video we are going to discuss long question 1 to 5 from unit 5 reaction kinetics of class 10 chemistry. These questions require detailed understanding and explanations of key concepts like rate of reactions, factor affecting rate, role of catalyst and collision theory. We will break everything down step by step so you can answer confidently in your exam. Let's begin and master these important long questions together. Question number 1 is examine the graph depicting part 1 is the concentration of reactants over time. With passage of time during a chemical reaction, what happens with the concentration of reactants? The graph which is in front of the text, it is showing a decreasing trend in reactant concentration over time. At 0 seconds, the concentration is about 1.6 units. Initially 0 seconds पे concentration of reactants क्या है 1.6 units. By 10 seconds, it drops to 0.8 units, indicating a rapid reaction rate initially. At 20 seconds, the concentration falls further to 0.4 units, and by 30 seconds, it reaches around 0.2 units. This shows that as time increases, the concentration of reactant steadily decreases, meaning the reaction slows down because fewer reactant particles are available to collide and to react. This graph is basically showing that initially 0 second पे concentration was very high, 1.6 units. उस वक्त क्या हुआ, बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद थे, कोलाइडिंग ज़्यादा थे, रिएक्शन रेट हाई था. ठीक है, जैसे जैसे टाइम गुजरा रिएक्शन में वो रिएक्टेंट्स इस्तेमाल होते गए, यूज़ होते गए, प्रोडक्ट्स बनाते गए, पीछे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती गई. Ultimately 30 seconds के बाद it reaches to 0.2 units, which is showing कि with passage of time क्या हुआ, reactants use हो गए सारे products में. Okay, next graph which we have to discuss is the effect of temperature on rate of reaction. Temperature increase or decrease का rate of reaction पे क्या फर्क पड़ता है? The graph shows a clear positive correlation between, means temperature is increasing, rate of reaction is increasing. Temperature and reaction rate. As the temperature increases, the rate of reaction increases significantly. At 20 degrees Celsius, the reaction rate is about 12 per second. Initially 20 degrees Celsius पर उसका rate of reaction क्या था, 12 per second. At 30 degree, it rises to about around 18 per second. At 40 degrees Celsius, the rate jumps to about 32 per second. At 50 degrees Celsius, it peaks around 50 per second. This increase is due to particles gaining more kinetic energy at the higher temperatures. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता गया, जो पार्टिकल्स थे उनमें कोलिजन इंक्रीज हो गई, वाइब्रेट ज़्यादा स्पीड से करने लग जाए, कोलाइड करने लग गए, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगी. एज अ रिजल्ट, कोलिजन्स बिटवीन पार्टिकल्स बिकम मोर फ्रीक्वेंट एंड एनर्जेटिक. उसमें क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन्स थी वो ज़्यादा होने लगी और ज़्यादा एनर्जी आने लगी पार्टिकल्स के अंदर, इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन्स. Those with energy is greater, मतलब उन collisions के नतीजे में कुछ particles की energy बराबर या equal या ज़्यादा हो गई activation energy से, जिसकी वजह से it speed up the reaction speed up हुआ. Part C, next graph which we have to discuss is the effect of catalyst on reaction rate. Catalyst का reaction rate पर क्या effect होता है? The graph shows that catalyst reduces the activation energy needed for action. This makes it easier and faster for reactants to form the products. The catalyst provides an alternative pathway with lower energy. However, it does not change the energy of reactants or products,
so the overall energy change stays the same. kinetic energy को change नहीं करता ये. हम सामने देख सकते हैं कि कैटलिस्ट जो होता है, एक हमें विदाउट कैटलिस्ट पीक नज़र आ रही है, फिर हमें विद कैटलिस्ट पीक नज़र आ रही है. बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर वो एनर्जी अटेन कर लें तब भी वो कोलाइड कर पाते हैं, तब भी वो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर पाते हैं. विदाउट कैटलिस्ट वो बहुत हाई होती है हर एक केमिकल रिएक्शन की, तो पार्टिकल्स को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है उसको ओवरकम करके रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए. कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट उस एक्टिवेशन एनर्जी को ना लो कर देता है, इतनी रेशियो से नीचे आ जाती है एक्टिवेशन एनर्जी, तो पार्टिकल्स को बहुत कम एनर्जी देनी पड़ती है और वो इजीली इसको ओवरकम करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. लेकिन ये सिर्फ अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करता है, सिर्फ क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को स्लो करता है कैटलिस्ट, किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की एनर्जी को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करता. ठीक है, ये नहीं है कि पाथवे वही रहने दे और पार्टिकल्स की एनर्जी इंक्रीज कर दे, that is not possible. Question number 2 is, an increase in the surface area increases the reaction rate. सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज करता है रिएक्शन रेट को. इवेलुएट दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ कोलिजन थ्योरी टू सपोर्ट योर आंसर. According to collision theory, a reaction occurs when particles collide with sufficient energy and proper orientation. रिएक्शन कब स्टार्ट होते हैं, जब पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं, उनमें सफिशिएंट रिक्वायर्ड एनर्जी होती है इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, और उनकी ओरिएंटेशन जो होती है वो प्रॉपर होती है. स्पेसिफिक पार्टिकल्स एक दूसरे से टकरा के पुराने बॉन्ड्स को ब्रेक करके नए बॉन्ड्स बना सकें. When surface area of a collide reactant is increased, जब surface area of solid reactant is increased, उन solids का surface area increase होता है. कैसे? By grinding it into powder. एक solid है, for example you can say salt है, salt का एक आपने देखा होगा पत्थर आता है, ठीक है, हम उसको अगर पाउडर में पीसते हैं तो उसके सॉल्ट के जो तमाम पार्टिकल्स होंगे वो एक्सपोज हो जाएंगे दूसरे रिएक्टेंट के साथ. बट अगर हम उस स्टोन के साथ दूसरे किसी एसिड को रिएक्ट करवाते रहे, एसिड छोड़ो वाटर को रिएक्ट करवाते भी रहे, तो वाटर को उसको सॉलिड को ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत एनर्जी चाहिए होगी उस पूरे क्या नाम है सॉलिड को ब्रेक करने में. तो increased by grinding into powder, more particles become exposed to the reactant. This led to the more frequent collision, कि ज़्यादा से ज़्यादा particles अब expose हो जाएंगे with other reactant. इससे ये होगा कि उस reactant के साथ ज़्यादा जो उसके particles होंगे collide करेंगे, higher chances of effective collisions. There are more chances के जो collisions हैं वो effective रहें. As a result, the reaction rate increases. For example, powdered calcium carbonate reacts faster with hydrochloric acid than large marble chips because of its greater surface area. जो कैल्शियम कार्बोनेट्स के मार्बल की तरह के चिप्स बने होते हैं, मार्बल बना होता है, ठीक है, सॉलिड, वो इतनी जल्दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. अगर हम पाउडर्ड कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे तो वो फौरन क्विकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा. कंक्लूजन, increasing surface area provides more collision opportunities, leading to faster reaction, which supports the statement based on collision theory. Question number 3 is, interpret the role of a catalyst in chemical reaction. Catalyst का क्या रोल होता है किसी भी chemical reaction में? A catalyst is a substance that increases the rate of chemical reaction without being consumed in the process. एक सब्सटेंस है जो जिसका काम क्या है, सिर्फ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करना, क्या रिएक्टेंट के साथ सबस्ट्रेट बनाता है, सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाता है, फिर प्रोडक्ट बना के खुद को डिटैच कर लेता है. इट वर्क्स बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव रिएक्शन पाथवे विद लोअर activation energy, making it easier for the reactant particles to collide successfully. As a result, more effective collisions occur. Reaction proceeds faster. The catalyst remain unchanged at the end. Example: magnesium oxide speeds up the decomposition of hydrogen peroxide
विदाउट बीइंग यूज्ड, कैटलिस्ट खुद यूज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4 इज डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे? एन इंक्रीज इन टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली रेजेस द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। According to the Maxwell-Boltzmann distribution curve, particles in the substance have a range of kinetic energies. At high temperature, the curve flattens and shifts to the right, indicating in this graph हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि it shifted towards the right, ठीक है। लो भी हो एक्टिवेशन एनर्जी और क्या नाम है it shifted to the right और ये flat भी हुआ, ठीक है, indicating that more particles gain a higher kinetic energy. A larger fraction of particles now passes energy equal to or greater than the activation energy. मतलब वो है कि lower activation energy को वो particles easily cross कर रहे हैं. Hence the number of effective collisions per second increases. This increase in collision frequency and collision energy results in faster reaction rate. In contrast, at lower temperature, fewer particles reach the activation energy threshold, resulting in slower reaction rates. This temperature directly affects both the distribution of particles and energies and probability of successful collisions, as clearly shown by Maxwell-Boltzmann and energy curve. यही बात है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पार्टिकल्स की जो मोशन वाइब्रेशन है वो इंक्रीज होगी, वो आपस में एक दूसरे से ज़्यादा कोलाइड करेंगे और देयर आर हाई चांसेस कि कोलिजन्स आगे कोलिजन के नतीजे में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो और वो काइनेटिक एनर्जी इतनी बराबर या मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी हो जाए और केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाए और रेट भी बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 इज जस्टिफाई द रोल ऑफ केमिकल काइनेटिक्स इन फूड इंडस्ट्री। केमिकल काइनेटिक्स का क्या रोल है फूड इंडस्ट्री में? Chemical kinetics play a vital role in the food industry by helping to understand and control the rates of chemical reaction. इसमें क्या होता है कि हम केमिकल रिएक्शंस को बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं और अपनी फैसिलिटेशन के अकॉर्डिंग उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इन्वॉल्व इन फूड प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन एंड स्पॉइलेज। फूड प्रोसेसिंग, फूड जो वैल्यूएडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम फूड को, ठीक है, और जब प्रिजर्व करते हैं बाद में इस्तेमाल करने के लिए प्रिजर्व करते हैं, और स्पॉइलेज और ख़राब होने से बचाते हैं। कैसे? predict shelf life by studying how quickly food components degrade under different storage temperature, light, oxygen exposure. हम किसी भी, जैसे हमें कैसे पता कि जो मीट है वो इतने दिनों में खराब हो सकता है? हमें कैसे पता कि एक ये जो फ्रूट है, स्पेसिफिक फ्रूट, वो कितने दिनों में, अगर हम इसको कितने टेम्परेचर पर रखें तो हम इसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज कर सकते हैं? हमें धूप में रखना चाहिए, छांव में रखना चाहिए, बाहर रखना चाहिए, हवा में रखना चाहिए किसी चीज को, ताकि वो ज्यादा जल्दी खराब ना हो। क्यों? क्योंकि हम उसके जो उस स्पेसिफिक फ्रूट या फूड है उसके केमिकल काइनेटिक्स के थ्रू के उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं टुवर्ड्स स्पॉइलेज, खराब होने के लिए। तो हम उनके वो पैटर्न, शेल्फ लाइफ प्रिडिक्ट कर लेते हैं, फिर हम उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। Improve food preservation techniques such as refrigeration and vacuum packaging by slowing down reactions that causes spoilage. रेफ्रिजरेटर में हम रखते हैं, टेम्परेचर स्लो करके हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ इंक्रीज कर सकते हैं। या वैक्यूम पैकिंग, हम पैकिंग करते हुए कोशिश करते हैं कि वैक्यूम्स के थ्रू अंदर से इसको एयर को रिमूव कर दें ताकि उसको ऑक्सीजन, केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन ही ना मिले, ठीक है, और स्लो हो जाए केमिकल रिएक्शंस और ज़्यादा टाइम ले खराब होने में, ठीक है। Optimize cooking and pasteurization process to ensure microbial safety while retaining nutrients and flavor by determining the most effective time temperature combinations. टाइम टेम्परेचर कम्बिनेशन के किस टाइम और कितने टेम्परेचर पर कोई भी हमारे जो फूड है वो बेटर कुक करेगी कि उसके अंदर से माइक्रोब जो है, बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा, वो मर जाए और हमारा इतना भी हम खाना ना पका दें कि उसके अंदर से फ्लेवर और न्यूट्रिएंट्स भी खत्म हो जाए। जैसे हमें कैसे पता कि हम रेसिपीज में यही कहते हैं ना कि इतनी मिनट पकाओ,
कैसे पता ओवर कुक ना हो? जब मीट होता है उसका जो न्यूट्रिएंट्स और फ्लेवर होता है, टेस्ट होता है, वो खराब हो जाता है अगर हम उसको ओवर कुक कर दें। लेकिन अगर अंडर कुक जल्दी उस न्यूट्रिएंट्स को बचाने के लिए जल्दी चूल्हा बंद कर देंगे तो उसमें माइक्रोब्स रह जाएंगे जो हमारे लिए कंटेमिनेशन होगी, डेंजरस होंगे। तो ये सब कुछ भी हमें कि गोश्त को, कौन सी टाइप के गोश्त को कितनी देर पकाना है, ये हमें केमिकल काइनेटिक्स के थ्रू समझ आता है। Control enzymatic reactions that may affect color, taste, or texture of the food. By applying chemical kinetics, the industry ensures higher product quality, safety, and longer shelf life while also reducing waste. Of course, हम फिर जब ज़्यादा अरसा उसको फ्रेश रख सकते हैं तो फ्रूट्स को या किसी और सब्जी वगैरह को या मीट को, इस तरह के फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स को, वो वेस्ट नहीं होंगे, वो ख़राब होके हमें फेंकनी नहीं पड़ेंगी। So that's all for today. Thanks for watching. We have now completed long question 1 to 5 from reaction kinetics with detailed explanations and examples. Make sure to revise these answers and understand the logic behind each concept. For more helpful content, don't forget to like, comment, share, and subscribe to stay updated. Keep studying, and I will see you in the next session. Take care and Allah Hafiz.